Hello, friends, new married couples, old married couples, parents, and all my fellows. Gati Global Education and Training Institute of Lucknow invited me, and the host of Mr. Pradeep Mal, Gati trainer and the ambassador from the Global Education and Training Institute, Lucknow. I have topic growing your kids in closer contact with nature. This is me, Sushil Kumar Jain, Director and Principal, Manas Convent Higher Secondary School, Rajgarh Dhar. So, the parents, new married couples, and who are going to be together and be couple. So, this is the topic title of the webinar, Growing Your Kids in Closer Contact with Nature, by Sushil Kumar Jain, Manasvi, Director, Manas the House of Real Education, Rajgarh Dhar, MP. And the background of this slide, you will see how the children or kids enjoying in nature. So, the growth of kids in closer contact with nature, how and why. So, I am very fond of the Pipa song written by the Robert Browning. This is the poem. In our childhood, we recited it. So, the growth of kids through the Pipa song. What about the poem? And how do we feel about the nature? What does Robert Browning mean for it? The years at the spring and days at the morn, mornings at 7, the hillsides dew palled, the larks on the wing, the snails on the thorn. God is in heaven, us right with the world. What does poet mean? Pipa song. ये जो समय है, ये बसंत का समय है, और जो दिन है, दिन का जो है शुरुआत हो चुकी है. सुबह का समय है. मॉर्निंग्स एट 7, मॉर्निंग के सुबह के 7 बजे हैं. हिल साइड्स ड्यू पाल्ड, जो हिल साइड्स है उस पे ड्यू जो ओस की बूंदें हैं वो नजर आ रही है. द लार्क्स ऑन द विंग, एक लार्क काइंड ऑफ बर्ड, एक पक्षी है, वो बिल्कुल हाई उड़ रहा है. द स्नेल्स ऑन द थोन, और जो घेंगा है, जो स्नेल है, वो कांटे पे जो है रेप्टाइल कर रहा है, वो रेंग रहा है. गॉड्स इन हिज हेवन, और जो ईश्वर है वो अपने स्वर्ग में यथास्थान है. ऑल्स राइट विद द वर्ल्ड, और जो दुनिया है, ब्रह्मांड है, उसके साथ सब कुछ व्यवस्थित हो रहा है, सब कुछ सही है. क्या बताना चाह रहा है? ये नेचर है, ये प्रकृति है. वो प्रकृति को फील करता है कवि, और वो कहता है. तो मैं आपको ले चलता हूँ इससे आगे की सैर मेरा वेबिनार में. Why there is need to have the closer contact with nature? क्यों जरूरी है नेचर के पास जाना, नेचर के करीब रहना, नेचर को फील करना, नेचर को प्रोटेक्ट करना. All living bodies are made up of 5 basic elements present in nature: air,
अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ब्रह्मांड में जितनी भी जीवित वस्तुएं हैं वो सब पंच महाभूत से बनी हुई है, जो कि जीवन के लिए सबसे आवश्यक वस्तुएं हैं। एयर, वायु, अर्थ, पृथ्वी, फायर, अग्नि, स्काई, आकाश, वाटर, जल। So there is need to have interaction with nature for maintaining the balance of all those elements in the body of your kids and early childhood. इसीलिए ये कहा गया है कि आपके बच्चे का या किसी भी व्यक्ति का, सिर्फ बच्चे ही नहीं सभी के लिए, पर ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि आप बच्चे को, अगर किड्स को बिफोर बर्थ, आफ्टर बर्थ और उसके चाइल्डहुड में ही अगर नेचर के करीब ले जाएंगे तो उसे आफ्टर 6 ईयर और 12 ईयर्स ये उसकी हैबिट हो जाएगी कि हाउ शुड ही और शी इंटरेक्ट विथ नेचर, वो प्रकृति के साथ किस प्रकार का व्यवहार करें। सो देयर इज नीड टू हैव द इंटरेक्ट विथ नेचर फॉर मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स इन द बॉडी ऑफ योर किड्स इन अर्ली चाइल्डहुड। मीन्स ये है कि अपने बच्चे को, ये ज़रूरत है बच्चों की कि उसे प्रकृति के करीब लाया जाए। और अगर प्रकृति के करीब नहीं लाते हैं तो क्या होता है, मैं बताना चाहता हूं आपको। ओके, अ बॉय ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफिसर्स हु एवर ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, just like this, in this phenomena, he was transferred from one place to another place in the remote area of the district in which the tehsil where the dense forest are present. Okay, so and the 5 years old boy, when on the truck or lorry, okay, and traveling and passes through that woods, and what did he feel? He started to cry. मैं कहना चाह रहा हूँ कि कोई बच्चा है जो हमेशा सिटी में रहा है, उसने जंगल देखा नहीं है, पर वो कहीं ट्रांसफ़र होके बाहर जा रहे थे एक प्लेस से दूसरे प्लेस, और उस एक जंगल में से उनकी लॉरी जो ट्रक था वो गुजरा। बच्चा रोने लगा, इतना घना जंगल उसने कभी देखा नहीं था, पहाड़ियाँ कभी देखी नहीं थी। सिर्फ बच्चे की बात नहीं है, बहुत सारे बड़े बड़े जो लोग होते हैं, जो परिपक्व होते हैं, वो भी जंगल, पेड़ों की जो घनापन है, जंगल का घनापन है बहुत ज़्यादा, जिसमें जंगल जिसको सघन बोलते हैं, डेंस फॉरेस्ट में चला जाए, अकेला हो या 2-3 ही लोग हो, पहाड़ी इलाका हो, नदियाँ हों, जानवर को डर हो, तो डर जाता है। वो जंगल के साथ अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाता है, और एक फियर जो डर है वो बैठ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो नेचर को नहीं जानता। वो जो नेचर है, ट्रीज़ है, जो इस तरीके का जो सराउंडिंग्स है, उसके बिहेवियर से वो परिचित नहीं है। ग्रोथ ऑफ किड्स, अब हम बात करते हैं किड्स की। एक्चुअली में क्या, किड्स को ही लेके वहीं से शुरुआत होती है, सारी लर्निंग, सारा प्रोसेस हम किड्स का इसलिए कहा गया, बड़े तक होना चाहिए इन क्लोजर कॉन्टैक्ट विथ नेचर। बट if we start it from the kids childhood, before the birth and after the birth, so it will be very useful and worthy for us. Growth of kids, internal growth at the first. What kind of the growth? Internal growth, physical development of the body and body parts, and it is very simple and very fruitful
इन क्लोज़र कांटेक्ट विथ नेचर। अगर क्लोज़र कांटेक्ट में आप नेचर के आसपास, आप आपके सराउंडिंग में जो ज्योग्राफी है, सराउंडिंग में जो फिजिकल फीचर्स हैं, उनमें अगर बच्चों को जाने देते हैं, अलाउ देम टू एक्सप्लोर द नेचर, सो उसके फिजिकल डेवलपमेंट में कहीं से कहीं तक कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, जस्ट लाइक अगर यदि मैं अपने बचपन की बात करूं, तो मैं बड़े एक ऐसे प्लेस पे रहा हूं जिसे कश्मीर आप झाबुआ डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। कठीवाड़ा जो प्लेस है, पूरा सराउंडेड बाय द हिल्स, हिली ट्रैक। एंड द 70s, during the 70s it was covered with the dense forest, and I had some friends who belong to the tribal community, and they were very familiar with the woods, forest, animals, and all their fruitful and some herbs, and they used to bring me in the forest, and I was there, roamed there, and had many times I used to have bath and the stream, river, okay, sandy river, and whatever I enjoyed. So that was the, I knew some, at that time I knew, I experienced and knew about the some plants and trees, teak, shisham, bahera, harra, okay, chiku, cashew nut, mango, and some more plants, mahua. So physical development, body and body parts, motor development, locomotive growth, and that is the forest, green, water, all those elements attract us. ये सारे जो एलिमेंट है नेचुरल, वो सब हमको अट्रैक्ट करते हैं। आप जब वहाँ जाओगे, एक्सप्लोर करोगे और हाइक पे जाएंगे, ट्रैकिंग पे जाएंगे, तो अपने आप लोकोमोटरी ग्रोथ होगी, सेंसर डेवलपमेंट। बच्चा तो नहीं जा सकता है, किड्स की बात कर रहा हूँ, इन्फेंट, बट इफ़ यू क्लोजर इन ब्रिंग him or her towards the nature, so it will his or her will be his or her habit. Sensor development, senses and observations, different kinds of things you will arrange in the modern parenting. आप अपने बच्चों को मॉडर्न पेरेंटिंग जो आपकी हैबिट्स है, जिस तरीके का, बहुत सारे कलरफुल थिंग्स, कलरफुल टॉयज़ एंड कलरफुल वॉल्स एंड मेनी थिंग्स उसके सराउंडिंग में आप बिखेर के रखते हैं। जो बेबी का जो रूम है वो पहले सेटअप होता है पूरा, उसके बिफोर बर्थ से लेके आफ्टर बर्थ तक आप उसको बिल्कुल केयर करते हैं, हैंडल विथ केयर, नॉट बी फ्रेजिल, नॉट बी ब्रोकन इन दिस वे। दैट इज़ नॉट द वे ऑफ द पेरेंटिंग। आप उसको आइसोलेट कर रहे हैं, जस्ट लाइक द क्वारंटीन इन कोविड पीरियड। ये क्वारंटीन है बच्चे का, उसको एक्सप्लोर होने दो, जाने दो, बिल्कुल फ्री, उन्मुक्त आकाश में उड़ने दो। स्काई इज द लिमिट फॉर हिम और हर, उसके लिए स्काई लिमिट होगी। सो दैट इज द, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो सेंस जब वो ऑब्जर्व करेगा, डिफरेंट वेराइटी ऑफ थिंग्स उसके अराउंड में होगी, तब तो वो ऑब्जर्वेशन करेगा ना। अब व्हाट इज गोइंग ऑन नाउ, what is going on now, that is the color of, that is the green color of the wall, okay, please give me the green toy, please give me the guava, please give, ये सारे टॉयज़ है। टॉयज़ में आप उसके सामने फ्रूट्स भी रख दी, you put fruits before him, you put some things before him. Oh, that is not the way yaar, that is original, not artificial. You should not go through the artificial, you must go through the original, and it will help you this develop the senses and sense organs through the observation. उसकी observation का जो दायरा है, जो क्राइटेरिया है, it will be the
वर्दी, ये इंक्रीज वेरी लार्ज एरिया, मतलब उसका जो ऑब्जर्वेशन का जो लिमिट है वो बियॉन्ड द इमेजिनेशन हो जाएगा, मेंटल डेवलपमेंट। और वो मेंटल डेवलपमेंट मीन्स बैलेंसिंग बिटवीन लेफ्ट एंड राइट ब्रेन। जो लेफ्ट ब्रेन है वो लॉजिकल चलता है, राइट ब्रेन जो है वो एस्थेटिक जो है, एस्थेटिक प्रोसेस जो है वो, एस्थेटिक आपको कहाँ से मिलेगा, सौंदर्य आपको कहाँ से मिलेगा, वो नेचर से मिलेगा, तब वो बैलेंस कर पाएगा। कॉग्निशनल डेवलपमेंट, बौद्धिक स्तर, ये लर्निंग का है और एजुकेशन का, टू अटेन द कॉग्निशन लेवल। साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, इंडिविजुअल when he was free in the nature, in the lap of the mother nature, then he will feel, he will identify, he or she will realize him or herself, what am I, and then he or she will go into the society and become the social. Moral development, values and virtues. So it is the moral development. How do you treat, how do you living beings around you, how do you treat the non-living beings around you? Okay, that is most important thing, and it will bring you the values and virtue. How do you care about the plant, how do you care about an organism? Okay, if you feel that means the plants and animals and organisms, a little creature, then you will feel about the human being, otherwise not. Natural development, natural surrounding, आप नेचुरल सराउंडिंग में हैं, नेचुरल डेवलपमेंट होगा। दैट इज, आई ऑलवेज want to live. From the beginning, from my childhood, I had desire to live in the countryside. I never be expose myself. I never desire to the metropolitan or any kind of the city, because there is the limitations of desire and requirement. Okay, sometimes we felt that is, it will be not fruitful to us, but you can realize that this is very worthy to live near the nature. So now that is next slide about the external growth. Okay, growth of kids, and what is the external growth? Health and hygiene, self care practices. अगर वो नेचर के करीब है, वो एक्सप्लोर करता है, डेली वो वॉकिंग पे जाता है, एक्सरसाइज करता है, नेचर में ऊपर नीचे ऊबड़ खाबड़ वाले रास्तों पर जाता है, जंगलों से बात करता है, पेड़ों की केयर करता है। सिर्फ एक गार्डन में ही वो अगर पानी लगा दे, पेड़ पौधे लगा दे, 5 पौधे लगा के डेली उसको अगर पानी देगा तो उसकी एक्सरसाइज हो जाएगी। और हेल्थ हाइजीन, सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस, और एनवायरमेंटल ग्रोथ फ्रॉम नेचर। एनवायरमेंटल ग्रोथ होगी उसकी, वो एनवायरमेंट के साथ इको फ्रेंडली रहेगा, वो एनवायरमेंट की केयर करेगा। वो एकेडमिक ग्रोथ, स्कूलिंग में बहुत ज़्यादा फर्क आएगा। जो एकेडमिक ग्रोथ है वो भी आप बहुत ज़्यादा, जब वो प्लांट्स को जानेगा, है ना, ऑब्जर्वेशंस उसका अच्छा होगा, है ना, तो साइंस एनी काइंड ऑफ द सब्जेक्ट ही और शी विल कोरिलेट विथ इट, वो कोरिलेट कर लेगा अपनी स्टडी को। लॉजिकल ग्रोथ, थॉट प्रोसेस उसकी बहुत स्ट्रांग होगी, क्योंकि आपके सराउंडिंग में आपके पास लॉट ऑफ द वेराइटी है टू थिंक अबाउट, और वो लॉट ऑफ द वेराइटी जो है वो आपको एक्सप्लोर करने के लिए क्यूरियस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। आजकल क्यूरियोसिटी तो हो गई कम, सिर्फ क्यूरियोसिटी कहाँ रह गई, आपके एंड्रॉयड फ़ोन में, गूगल में रह गई है ना। और गूगल जो चीज़ें देता है वो पूरी रेडीमेड है। वुड यू लाइक टू हैव द डाइजेस्टेड फूड टू ईट? क्या आप अपने बच्चे को डाइजेस्टेड फूड खिलाएंगे? तो जो गूगल में जो स्टफ़ है, गूगल में जो मटेरियल है वो डाइजेस्टेड ही है, मतलब फेसेस समझ लो उसको। साइंटिफिक एटीट्यूड, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन होता है। टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ, या टेक्नोलॉजिकली टेक्नो फ्रेंडली होना अच्छा है, टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ बहुत अच्छी है, पर
not that means exception from the escaping, not escaping from the nature. नेचर से अलग होके नहीं. अभी टेक्नो फ्रेंडली में, टेक्नो में क्या होगा, ऑल नॉट ओनली द किड, not only the elders and all those things and people, everybody is extremely addict of Android phone and new technology. So नशा हर चीज का गलत है. फाइनेंशियल ग्रोथ, इकोनॉमिकल सेंस होना चाहिए. जब वो नेचर को जानेगा, ही विल गो थ्रू द आंट है, आंट जो है वो किस तरीके से हार्डवर्क करती है, किस तरीके से वो अपना 6 मंथ का जो फूड है उसको पहले कलेक्ट करके रखती है, ये सिखाइए उसको. वहाँ से इकोनॉमिकल सेंस पैदा होगा. ठीक है. हाउ डू द एक्सेस ऑफ मनी, एक्सेस ऑफ रिसोर्सेस, ओके, stored in the different body parts of the plant. How do the plants invest its energy or its currency into the different scenario, different agencies? What I am going to tell you, what I want to tell you, the sun is the ultimate source of the energy, and sun's energy trapped by the green plants, they are producers. Okay, and what through the photosynthesis the green plants make their own food in the form of the glucose and leave carbon dioxide, okay, and then synthesize into the starch, which is stored in the different body parts and in a plant. Okay, that means that is the investment of the plant, okay, in root and shoot system and branch and leaves and fruit and flower and seed, all those things, okay. And this, the producers, okay, green plants are the producers and they prepare their own food. But we animals and human beings depend on the plants for our food. So this is the interaction between human, plants and animals. So that is the economical sense वहाँ से पैदा होगा. Cleanliness, जब वो खुद नेचर को क्लीन रखेगा, खुद को क्लीन रखेगा, तब जाके उसकी ग्रोथ, मतलब ये हैबिट होगी. ग्रोथ ऑफ किड्स, अब फ्रॉम बिफोर द बर्थ, I am going to tell you the before the birth, that is the question raised before the sentence. Before the birth, how kids को before birth कैसे करेंगे? So I am going through this slide, marital case history of the parents. मैं आपको उस तरफ ले जाना चाहता हूँ कि एक बच्चा जिसको पेरेंट्स जो है, जो मेल एंड फीमेल है, वो उसको किस में, संसार में लाना चाह रहा है, वो मीडियम है. बट हाउ डिड पेरेंट्स गॉट मैरिड? उनका दोनों का जो मैरिड का मीन्स मैं यहाँ लेता हूँ कि उनका जो मिलना है, मैटिंग, हाउ डिड दे मेट, मीन्स मैरिड कहूँगा क्योंकि जब भी पेरेंट्स की बात होती है इंडियन कल्चर के मामले में सीधा सा गणित है कि आपने शादी कैसे की. What is parents' attitude about nature? दूसरा ये है कि पेरेंट्स का जो एटीट्यूड क्या है प्रकृति को लेके, टू हैव इश्यू प्लांट और अनप्लांट. क्या जब उनका मैरिज हुआ, मैरिज होने के बाद उन्होंने जो पहले बच्चे को जन्म देना है, दूसरे को, तीसरे को, कितने बच्चे पैदा करना है, और ये प्लांट था या अनप्लांट था, पहला कब करेंगे, why, when and how, ये सारी चीज़ें आती है. How much time did mother interact with nature before conception? कंसेप्शन के पहले मदर ने नेचर के साथ कितना समय बिताया. How much time did mother interact with nature after conception? मदर ने कंसेप्शन के बाद कितना समय बिताया
नेचर के साथ, वो कितने क्लोजर कांटेक्ट में रही, क्योंकि बात वहीं से आएगी जो भी चीज़ें, क्योंकि हमारा जो बॉडी है, हमारी जो बॉडी है, वो बॉडी जो है आउटर वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा क्या होती है, उसके साथ कोऑपरेट करती है, कोऑर्डिनेट करती है। कैसे कोऑपरेट करती है, कैसे कोऑर्डिनेट करती है, और कैसे हम बिहेव करते हैं हमारे सराउंडिंग्स में, वो सारी जो चीज़ें हैं। अगर आप नेचर में जा रहे हैं, बहुत अच्छा आपको लग रहा है, बहुत अच्छी सीनरिक ब्यूटी है, सिनिक बहुत ज़बरदस्त है, चार्मिंग ब्यूटी है, ठीक है। नेचर में आपको हिल्स है, पहाड़ है, स्प्रिंग्स हैं, है ना, और सब दूर ग्रीन है, डेंस फॉरेस्ट है, और कुछ जो है 4 फुटेड जो वाइल्ड एनिमल्स है वो नज़र आ रहे हैं। तो वो आपको क्या करते हैं, हैप्पी, एक फीलिंग पैदा करते हैं, आपको खुश करते हैं। आप में इतने ज़्यादा कंटेंटेड हो जाते हैं कि आपको जो हार्मोन्स है उनका सर्कुलेशन जो है वो इस तरीके से होने लगता है कि बॉडी आपकी प्रॉपर वर्क करने लगती है, और वही जो चीज़ है आपके आगे जो रिलेशंस है उसको मेंटेन करके रखती है, और वो रिलेशंस ही जो है आगे जाके कंसेप्शन में आएंगे, जो आपके थॉट्स है, जो हार्मोन्स है, जिस तरीके का आपका पूरा इंटरनल और एक्सटर्नल जो बैलेंसिंग थी वो बैलेंसिंग आएगी, और उस तरीके से आप कंसेप्शन करेंगे। तो आपका जो फर्टिलाइजेशन से लेके जायगोट, जायगोट टू एम्ब्रियो, एम्ब्रियो टू जो आपका इशू आने वाला है, जो आपका किड्स है, जिसको आप डिलीवर करना चाहते हैं, है ना, वो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू यूअर, मतलब जैसा आप चाहते हैं, जैसा होना चाहिए, इट शुड बी, इट मस्ट बी। हाउ मच टाइम डिड मदर इंटरेक्ट विद नेचर आफ्टर कंसेप्शन, कितना समय मदर ने कंसेप्शन के बाद बिताया। ग्रोथ ऑफ किड्स आफ्टर बर्थ, अर्ली केयर, अब बच्चा हो चुका है, एट द फर्स्ट वे ऑफ फीडिंग, सबसे पहली बात आती है उसकी फीडिंग की। ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट टिल 6 मंथ, 6 मंथ तक ब्रेस्ट फीडिंग होना जरूरी, ये नेचुरल है, नेचुरल। और इसमें अगर आप मदर्स है वो अगर ये देखे कि नहीं मेरा थोड़ा सा बॉडी शेप साइज़ ये बिगड़ जाएगी, तो ये गलत बात है। और उसके बाद भी आफ्टर 6 मंथ देयर इज़ नो मस्ट, एवरी मदर मस्ट नॉट यूज़ द बॉटल, बॉटल से दूध नहीं पिलाए, कटोरी और चम्मच से दूध पिलाए, ठीक है। इंटरेक्शन विथ नेचर, अब उसके बाद क्या है 6 मंथ तक। अब हमारे इंडियन कल्चर में अभी बहुत ज़्यादा केयर करते, ऐसा नहीं हो जाए, वैसा नहीं हो जाए, सर्दी गर्मी इस सब का बहुत ख्याल रखा जाता है। अभी बच्चे क्या है, सारे एसी में पैदा हो रहे हैं, एयर कंडीशनर। देखिए मैं इसको एक आई एम फेलो ऑफ द कंप्यूटर इन 90s, मैंने 90s में कंप्यूटर जब पहली बार जब कंप्यूटर आया 90s में इंदौर में कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, नाउ इट बिकम द डाटा साइंस डिपार्टमेंट, okay. I was there, and that is the time when the computer was kept in the air conditioner atmosphere. Without air conditioner computer will not work, okay. They got heated and stopped the work, and there is the problem of the virus, dust and all those things. So that is the very sophisticated isolated chamber the computers were put and kept. Okay, so what happened? Okay, now computers came out from the air conditioner everywhere. कंप्यूटर अब बाहर आ गए हैं और बिल्कुल कहीं पे भी आपको मिल जाते हैं। ये भी कंप्यूटर है जो हमारे हाथ में, कितने गंदे जगह, पानी में, गंदगी में, कहीं पर भी पड़ा रहता है, ठीक है, और बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। बट एंड बिफोर इट द किड्स एंड चिल्ड्रन वर मडी एंड धूल में खेला करते थे वो बच्चे। अब वो बच्चे कहाँ गए? एयर कंडीशनर में। कंप्यूटर तो बाहर आ गया, मशीन तो बाहर आ गई, नॉन लिविंग थिंग तो बाहर आ गई एसी से, पर बच्चे और फैमिली और मेंबर्स, ह्यूमन बीइंग जो है वो एयर कंडीशनर में चले गए। सो आप बताओ कि आपकी ह्यूमन पावर, इम्यूनिटी जिसको बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, उसका क्या होने वाला है? ये कोविड, ये कोरोना, ये हम पे ऐसे ही तो हावी हो गए। सो द इंटरेक्शन विद द नेचर, वाटर, सनलाइट, ब्रीज, नेचुरल साउंड, ये सब उस बच्चे को मिलना चाहिए, मिलना चाहिए बिल्कुल। 6 मंथ उसके पहले आपको
बिल्कुल ले जाना चाहिए, सनलाइट में ले जाओ, थोड़ा सा सनलाइट दिखाओ बिफोर 9 o'clock, वाटर में, हल्की हवा में, नेचर, आउटर वर्ल्ड। एक I was in the middle school at that time, and there was the granddaughter of the principal sir. Okay, and she had the baby, and in the very biting cold winter, she brought to her at my home, and whatever that means only, and the very little one cloth on his her baby, and that is not when we are put up with the cape, and that means the sweater and more things with us. We are after 6, that means 8 or 10 years old at the time, and only was the infant. She was the infant baby with the very little clothes on her. मतलब वो जो थी, वो दीदी जो थी, उनकी बच्ची को लेके आई, और उनकी बच्ची को लेके, और उसने कोई हमारे प्रिंसिपल सर की बच्ची थी, और इन्फेंट बेबी उनके गोद में थी, और उसको कपड़े ही बहुत कम पहना रखे थे. माई मदर टोल्ड एंड आस्क्ड हर टू व्हाई डिडंट यू पुट द वार्म क्लॉथेस ऑन दिस बेबी, दिस इज शी गॉट कोल्ड. मेरी मदर ने पूछा उनसे कि भाई क्यों, भाई ये इस बच्ची को ऐसे क्यों रख रखा है तुमने, ऐसे क्यों रख रखा है, बहुत ज़्यादा कोल्ड है, बाइटिंग कोल्ड है, इसको पकड़ लेगी, ये बीमार हो जाएगी, निमोनिया हो जाएगा. What did she answer? She answered, आंटी मैंने इसको ऐसी ही आदत डाली है, इसको हैबिचुअल कर दिया. एंड व्हाट हैपेंड, देयर वाज द स्लोप आउटसाइड ऑफ द माय होम. मेरे होम के आउटसाइड में मतलब जो बाइक को चढ़ाने के लिए एक स्लोप था, सीमेंटेड स्लोप था सीढ़ियों पे, गवर्नमेंट क्वार्टर था, स्लोप था. एंड सडनली व्हाट व्हेन शी वेंट आउट टुवर्ड्स हर होम, वो जैसे ही घर से, एंड that means take her step on the stair, or that what happened suddenly, she stepped on the slope and slept, and her daughter and fell on the earth, and what happened, and the baby started to burst into tears. जो बेबी थी उसने रोना शुरू कर दिया. बट व्हाट, ओके, her mother stood up and started to Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. And after third or fourth recitement, the baby stopped to cry. So what, I was surprised. That was the amazing observation, and that is the caring and parenting. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अर्ली चाइल्डहुड में किस तरीके से मैंने आपको सिर्फ एक हल्का सा एक मैंने सिर्फ वो था, एक इवेंट था जो मैंने सुना दिया, और आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, किस तरीके की पेरेंटिंग है. आउटर वर्ल्ड, ब्रिंग आउटसाइड आफ्टर 1.25 month मीन्स आपके उसके बाद आउटर वर्ल्ड में आप ले जाइए, और ये हो जाना चाहिए 15 दिन, 1 महीना या 1.25 महीने के बाद आप ले जा सकते हैं, है ना. और ये है, देखिए हमारे इसमें सिस्टम भी है, जलवायु बोलते हैं उसको. जलवायु का मतलब है जल के पास, वायु के पास, सनलाइट में, ये सारी चीज़ें होना चाहिए. सूरज, जलवायु, मतलब कंप्लीट पूरे जो हमारे बेसिक एलिमेंट्स है उनके सामने ले जाना. It is necessary to keep baby on the flat surface of the floor on his small bed daily for some time. जब छोटा बेबी इन्फेंट है, उसको आप बेड नीचे लगाइए और उसको धरती पे सुलाइए, ठीक है. आफ्टर 6 months बेबी शुड बी केप्ट इन द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ फ्लोर. और आफ्टर 6 months आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी सीजन के अकॉर्डिंग आप उसको रख सकते हैं. विंटर और रेनी को छोड़ दे तो बाकी सीजन में आप रख सकते हो, और अगर आप रखना चाहते तो उनमें भी रख सकते हैं, क्योंकि दैट इज हैबिचुअल. बिकॉज फ्लोर कॉन्टेक्ट इन सॉइल, clay, there is need to have and a closer contact with the soil and clay and muddy and all those surroundings, because these surroundings are the more than 20,000 of the bacteria which are very friendly to us in our body, and these are very worthful for us to
इम्प्रूव आवर इम्यूनिटी। इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं डस्ट में, क्ले में, इन सब में, और वो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। आप किसी वायरस के कांटेक्ट में आ जाओ, है ना, और उस वायरस को आप, वो वायरस जब अंदर जाता है और आपकी बॉडी उसका एंटीजन और एंटीबॉडी बना लेती है, तो फिर वो वायरस आप पे असर नहीं करता है। सो दैट इज़ द वे। इसलिए मैं वो बात कह रहा हूँ। देखिए, ग्रोथ ऑफ किड्स, अब नई बात आ जाती है। मैं आपको यहाँ पे ये स्क्रीन जो आपको बता रही है, ये स्क्रीन आपको बता देगी कि आप किस तरीके से, यहाँ पे 2 डायग्राम से 2 पिक्चर्स दिख रहे हैं। एक दिख रहा है इधर के, एक मदर है, बेबी क्रेडल में है, और उसी के साथ क्रेडल सॉन्ग भी है। और ये मेरे अपने चाइल्डहुड का बहुत बेहतरीन क्रेडल सॉन्ग है। और उन बच्चों को किस तरीके से पाला जाए वो इधर दे रखा है, और हम किस तरीके से पाल रहे हैं इस तरफ दे रखा है। देखिए, ये स्क्रीन ही आपको बता रही है, ये स्लाइड ही आपको बता रहा है कि आज जो मॉडर्न तरीका है, और जो मॉडर्न बच्चे हों किस तरीके से बिहेव करते हैं, और हम किस तरीके से पेरेंटिंग कर रहे हैं उनकी। तो पहले तो मैं आपको ये सुना देता हूँ कि व्हाट डज लिटिल बर्डी से, एंड 3rd स्टैंडर्ड पोएम। और ये पोएम मेरे दिल के बहुत करीब है। हर टचिंग inspired it. What does little birdie say in her nest at peep of day? Let me fly, says little birdie, mother let me fly away. Birdie rest a little, mother let me fly away. Birdie rest a little longer, till the little wings are stronger. So she rests a little longer, then she flies away. गजब। एक मदर जो है, बच्चा जिद कर रहा है कि मुझे उड़ने दो, तो माँ उसको कहती है कि नहीं, थोड़े से तुम्हारे विंग्स स्ट्रांग हो जाने दो, उसके बाद तुम उड़ना। तो वो बच्चा जो है, बर्डी का बच्चा है, वो मान लेता है। उसके बाद वो उड़ने का डिसाइड करता है जब उसके विंग स्ट्रांग हो जाएंगे। और हमने यहाँ किया क्या है, बच्चों के हाथ में एंड्रॉइड दे के उनके विंग ही काट दिए। देखो, ये छोटा सा बच्चा जो देख रहा है इधर, ये बच्चा किस तरीके से मदर से बिहेव कर रहा है, कैसा इरिटेट है। एक मदर बैठी हुई है सारे आउटर थिंग्स को लेके, और वो इसको सिखा रहे हैं। और इधर देखिए, नेचर के पास जाने के बजाय आपने आर्टिफिशियल चीज़ें तैयार कर दी, उस पर 2 बेबी बैठी हुई है। हमने बाइकर्स बना दिया बच्चों को, और उसी में हम उसको स्टेटस सिंबल मानते हैं। और यहाँ देखिए, एवरीबडी वांट्स। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पेरेंटिंग गलत है, पेरेंटिंग बहुत अच्छे से हो रही। पेरेंट्स, मदर बहुत ज़्यादा अवेयर हो गई है, फादर्स भी इतने अवेयर हो गए हैं कि जो मदर कहती है वही करता है ना। फादर भी जो है बिल्कुल, मदर और बच्चे और उसके सराउंडिंग में बाकी सारी चीज़ें एक तरफ, बच्चा और माँ एक तरफ, ये चीज़ें हो गई है। बट हर कोई ये चाहता है कि उसके बच्चों को पंख लगे, उसके सपनों को पंख लगे। तो आप पंख कैसे लगा रहे हैं? आर्टिफिशियल पंख। एक किटन को आप पंख लगा दोगे तो वो उड़ लेगा क्या? नहीं, जो उसमें पोटेंशियल है उसकी बात करें। देखिए आप, और इस तरीके से अब आपके बच्चे जो है वो सारे मोबाइल के अंदर डूबते जा रहे हैं। और अब ये स्थिति आ गई कि पेरेंट्स और बच्चे ये सब चाहते हैं कि, बच्चे तो क्या पता चाहते या नहीं चाहते, पर पेरेंट्स जरूर चाहते हैं कि उनके बच्चों को इन एंड्रॉयड के समुंदर में से डूबने से बचाया जाए। ग्रोथ ऑफ किड्स, हाउ? क्लोजर इन कॉन्टैक्ट विथ एयर, कैसे? मिंगल विथ एयर के साथ उसको रखिए। क्लोजर इन कॉन्टैक्ट विथ अर्थ, lay them on ground, soil and mud and allow them to play in soil and mud. उनको जमीन में सोने दे, उनको सॉइल में लौटने दे, और मड में मतलब कीचड़ में सनने दे, कोई दिक्कत नहीं। समटाइम्स उसको बताएं, और उसके बाद लाके उसको बेहतरीन से आप उसकी केयर करें, उसको साफ करें, क्लीन करें, उसको सिखाएं कि कैसे साफ होते हैं। क्लोजर इन कॉन्टैक्ट विथ फायर, एक्सपोज देम इन द सनलाइट बिफोर 9 o'clock in the morning, सनलाइट 9 o'clock के पहले तक। क्लोजर इन कॉन्टैक्ट विद स्काई, एक्सपोज देम अंडर नाइट स्काई एंड अंडर डे स्काई। क्लोजर इन कॉन्टैक्ट विद वाटर, अलाउ देम टू प्ले इन वाटर एंड रेन। All those practices will become habits of your young ones if you allow to continue these practices till the age of 12 years. आप ये जो प्रैक्टिसेस है घर पे 6 इयर्स तक आपको लेके चलना पड़ेगा। उसके बाद बच्चे की हैबिट हो जाएगी, बड़े तक उसकी टिल द
डेथ उसकी ये हैबिट रहेगी, वो हमेशा नेचर के पास जाएगा. एक्चुअली आफ्टर 6 years देयर विल नो नीड टू गाइड देम ड्यू टू they will become habitual. Now what is the research says? The basic components of a naturalized play environment for young children include water, plentiful indigenous vegetation including trees, bushes, flowers and the long grasses that children can explore and interact with. Animals, creatures in ponds, butterflies, birds, insects, bugs and reptiles. Sand and best if it can be mixed with water, diversity of the color, textures and materials, ways to experience the changing seasons, wind, light, sounds and weather, and natural places to sit in on under the learn against the climb and provide a shelter and shade, different levels and nooks and the crannies and places that offer socialization, privacy and the views, structure, equipment and the materials that can be changed actually or in their imagination including plentiful loose parts, types of rocks, stones and different kinds of the soils. And as a principal director of the school, as a teacher, I allow my kids, my students, my children to explore throughout the campus of the school. That's why I include the curriculum, horticulture as a subject is in my curriculum, and I always allow them to explore the whole surroundings and they do it and perform the many activities and they know more about the nature, birds and bird watching and all those creatures, flora and fauna. Growth of kids at activities that bring the benefits of the nature to children. Richard Lau, the recipient of the 2018 Order Medal, provides a great list of the activities for the families in his online. क्या एक्टिविटीज़ है, कौन सी? मेंटेन ए बर्ड बाथ और बर्ड फीडर होना चाहिए, बर्ड बाथ की आपको व्यवस्था करना चाहिए ताकि आपके घर के आसपास बर्ड्स आए तो बच्चा उनको देखेगा, उनके कलर जानेगा, उनकी हैबिट जानेगा. एनकरेज किड्स टू कैंप इन द बैकयार्ड. अगर आपके घर में बैकयार्ड है या कहीं पर आपके आसपास बैकयार्ड है तो उसमें कैंपिंग 1 या 2 दिन का कैंपिंग करना बहुत ज़रूरी. बिल्ड ए बैकयार्ड वेदर स्टेशन. आपको बैकयार्ड को वेदर स्टेशन बना देना चाहिए. मैक के ग्रीन आवर. हर फैमिली में यह ट्रेडिशन होना चाहिए कि कम से कम 1 घंटा जो है वो चाहे गार्डनिंग में दे, चाहे हॉर्टिकल्चर में दे, चाहे एग्रीकल्चर में दे, कोई भी नेचर के साथ आप रहें. इन्वेंट ए नेचर गेम ऑन अ हाइक इन द कंट्री. कोई सा भी नेचर वाला जो गेम है वो आप इन्वेंट करें. बिल्ड ए ट्री हाउस विथ यूर किड्स. ट्री के ऊपर हाउस बनाना, मचान बनाना वो सिखाएं. प्लांट अ गार्डन. एक गार्डन बनाए. रेज बटरफ्लाइज बढ़ाए. कैसे बढ़ाएंगे आप? ग्रोथ ऑफ किड्स. इम्पैक्ट्स ऑफ इन क्लोजर कॉन्टैक्ट विद नेचर. क्या इम्पैक्ट होंगे जब बच्चा नेचर के कॉन्टैक्ट में होगा? नेचर रिस्टोर्स चिल्ड्रंस अटेंशन. सबसे बड़ी बात है कि नेचर जो है आपके बच्चे का जो है अटेंशन, मतलब वो हमेशा सक्रिय रहेगा, अलर्ट रहेगा, वो हर चीज़ को ऑब्जर्व करेगा. नेचर रिलीव्स चिल्ड्रंस स्ट्रेस. और जो नेचर है वो उसके तनाव को कम करेगी. बच्चे में जो भी तनाव है वो नेचर के पास जाके जब वो बटरफ्लाइज को देखता है, जब फ्लावर्स को देखता है, कलर्स को देखता है, पत्तियों को छूता है, तो वो सब अपने जो परेशानियां उसको भूल जाता है. वैसे बच्चों को परेशानियां होना ही नहीं चाहिए, पर आजकल के बच्चे बहुत स्ट्रेस में रहते हैं. नेचर हेल्प्स चिल्ड्रन डेवलप मोर सेल्फ डिसिप्लिन. सबसे बड़ी बात है कि नेचर से ही वो डिसिप्लिन सीखता है. आउटडोर इंस्ट्रक्शंस मैक्स स्टूडेंट्स मोर एंगेज्ड एंड इंटरेस्टेड. बिल्कुल सही बात है. दैट इज आई एक्सपीरियंस्ड मेनी टाइम्स. माई स्टूडेंट्स केम टू मी, सर प्लीज leave us to, that means allow us to go and under the guava tree to have our lunch. That means allow us to take lunch in the garden. Okay, हम यहाँ चले जाएं, हॉर्टिकल्चर. हम they always tell me to हम pick the small stones and some that means the unwanted things from the garden. वो ये कहते हैं कि हम यहाँ से ये पत्थर ये चुन लें, ऐसा कर लें, ऐसा वो अक्सर मेरे से परमिशन लेते रहते हैं.
टाइम नेचर सेटिंग, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो नेचर के करीब रहे। और हमारे दैट मीन्स इन आवर कैंपस द फ्रूट्स fruitful that means fruit bearing trees are available, and guava and papaya, custard apple, all those increase in the exploration curiosity and the observational attitude। देखिए दूसरी बात है कि उसका ऑब्जर्वेशनल एटीट्यूड बढ़ जाता है। टाइम आउटडोर में इंक्रीज फिजिकल फिटनेस, जब आप आउटडोर पे जाते हैं तो अपने आप फिजिकल फिटनेस। नेचर सेटिंग में प्रमोट सोशल कनेक्शन एंड द क्रिएटिविटी। जो नेचर है वो सोशल कनेक्शन और क्रिएटिविटी दोनों को इंक्रीज करती है। इंक्रीज काइंडनेस, सेंस ऑफ द प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द सराउंडिंग, ये भी पैदा करती है। काइंडनेस, दयालुता, जब आप जानवरों के प्रति दयालु होंगे तो ऑटोमेटिक आप ह्यूमन बींग्स के प्रति भी दयालु होंगे। प्रोटेक्शन, सुरक्षा, प्रिजर्वेशन, रक्षण करना, संरक्षण करना। इंक्रीज हार्मोनी बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, ह्यूमन मानव और प्रकृति के बीच में एक संबंध स्थापित करना, समन्वय स्थापित करना। ट्रांसफॉर्मेशन पोटेंशियलिटी ऑफ सेंस ऑर्गन्स इनटू रियलिटी, सेंस ऑर्गन्स की जो पोटेंशियलिटी है उसको रियलिटी में बदलना। देखिए ग्रोथ ऑफ किड्स 3-C हेलन केलर के बहुत ऑटोबायोग्राफी में से लिया गया एब्स्ट्रैक्ट है, और इस एब्स्ट्रैक्ट से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। और वो हेलन केलर की इस स्टोरी पे एक्चुअली में वो फ्रॉम बर्थ ब्लाइंड, डीफ एंड डम इस तरह की बालिका थी, जिसको उनकी एक टीचर ने उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी चैलेंज लिया और बालिका को पढ़ाया, उसकी केयर की, और उसी ने बहुत सारी बुक्स लिख दी जिस पे इस स्टोरी पे, हेलन केलर की इस स्टोरी पे, ऑटोबायोग्राफी पे एक फिल्म बना है ब्लैक। अमिताभ बच्चन और रानी मुखर्जी उसमें उन्होंने एक्ट किया है, बहुत ज़बरदस्त है। इन दिस पोर्शन ऑफ हर ऑटोबायोग्राफी शी रिलेट्स इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे हाउ शी वुड लाइक टू स्पेंड द 3 days विथ हर आई साइट रिस्टोर। इसमें बताया गया है कि वो ये चाहती है, ऑथर ये चाहती है कि 3 दिन के लिए उसको आंखें मिल जाए। दिस पीस ऑफ हर ऑटोबायोग्राफी इंस्पायर्स अस टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ आवर सेंसेस एंड एंजॉय थैंकफुली ऑल द फेसेस ऑफ द वंडर, ब्यूटी एंड द प्लेजर स्प्रेडिंग अराउंड अस। वो बताती कि किस तरीके से हमारे अराउंड में, हमारे चारों ओर सुंदरता, सौंदर्य बिखरा पड़ा है। हम अपनी सेंसेस का यूज़ नहीं करते, 5 इंद्रियां हैं हमारी, उन इंद्रियों का हम सही तरीके से उपयोग नहीं करते हैं, उनका पूरा उपयोग नहीं लेते हैं। बता रही क्या कहना चाहती है। I have often thought it would be a blessing if each human being was stricken blind and deaf for a few days at some time during his early adult life। लेखिका ये कहती कि मैं ये चाहती हूँ कि जैसे मैं हूँ ऐसे ही कम से कम कुछ दिनों के लिए कोई हर ह्यूमन बीइंग को अपनी एडल्ट लाइफ में अंधा और बहरा हो जाना चाहिए। डार्कनेस वुड मेक हिम मोर अप्रिशिएटिव ऑफ साइट एंड द साइलेंस वुड टीच हिम द जॉयज ऑफ द साउंड। क्यों कह रही वो ऐसा कि हर व्यक्ति को कुछ समय के लिए अंधा और बहरा हो जाना चाहिए? उसका कारण है कि डार्कनेस जो है उसको साइट को समझने में, अप्रिशिएट करने में मदद करेगा, और जो साइलेंस है वो उसको ध्वनि के आनंद का अनुभव करवाएगा। Now and then I have tested my seeing friends to discover what they see. Recently I asked a friend who had just returned from a long walk in the woods what she had observed. Nothing in particular, she replied. अब मैं आपके सामने परीक्षण करके बताती हूँ कि क्या चीज़ें मैं मेरे फ्रेंड्स को, माई सीइंग फ्रेंड्स टू डिस्कवर, मेरी जो देख सकती है सहेली, उससे मैं पूछता हूँ। वो अभी अभी जंगल से होके आई है, 1 घंटा उसने जंगल में बिताया, और मैंने जैसे ही वो आई उससे पूछा कि तुमने क्या ऑब्जर्व किया, तो नथिंग पर्टिकुलरली, वो कोई खास बात नहीं। हाउ वॉज इट पॉसिबल? ये बात मुझे झकझोर देती है। आई आस्क्ड माई सेल्फ टू वॉक फॉर एन आवर थ्रू द वुड्स एंड सी नथिंग वर्दी ऑफ नोट।
वो 1 घंटे जंगल में घूम के आई और वो बिल्कुल बड़े सरलता से कह रही कि मैंने कुछ भी ऑब्जर्व नहीं किया। आई वो कैन नॉट सी, मैं जो देख नहीं सकती हूँ, फाइंड हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स टू इंटरेस्ट मी थ्रू मैर टच, मैं वो हूँ जिसको मैं देख नहीं सकती हूँ, मैं सिर्फ टच से, अपने शरीर के हाथ से टच करके मैं हजारों चीज़ें पता लगा सकती हूँ, मैं अनुभव कर सकती हूँ। आई फील द डेलिकेट सिमेट्री ऑफ लिप, मैं डेलिकेट सिमेट्री को फील कर सकती हूँ पत्ती की। आई पास माई हैंड्स लविंगली अबाउट द स्मूथ स्किन अ सिल्वर बर्च, मैं स्मूथ सिल्वर बर्च की स्मूथ इसकी सिल्वर बर्च जो ट्री होता है उसकी स्मूथ स्किन को मैं फील कर सकती हूँ। आर दैट रफ सैगी बार्क ऑफ द पाइन, या फिर मैं पाइन की सैगी बार्क को जो छाल है उसको मैं फील कर सकती हूँ। इन स्प्रिंग आई टच द branches of trees hopefully in the search of a bud, the first sign of awakening nature after her winter sleep। मैं जो ट्री की ब्रांचेस को होपफुली, होप में, आशा के साथ टच करती हूँ कि मेरे हाथ में कोई बर्ड आए या फ्लावर आए, और मैं वहाँ से पता लगाती हूँ कि ये विंटर स्लीप से जागा हुआ क्या है, नेचर है, प्रकृति। ऑकेजनली इफ आई एम वेरी फॉर्चुनेट आई प्लेस्ड माई हैंड जेंटली ऑन ए स्मॉल ट्री एंड फील द हैप्पी क्वेवर ऑफ अ बर्ड इन फुल सॉन्ग। मैं गजब में बर्ड का सॉन्ग सुन के ट्री, छोटे से बड़े स्मॉल ट्री को है ना, उस पर हाथ फेर के मैं पता लगा सकती हूँ। और वो कह रही कि वो कुछ भी, उसको कुछ पर्टिकुलरली उसने कोई ऑब्जर्व ही नहीं किया। एट टाइम्स माई हार्ट क्राइज आउट विथ लॉगिंग टू सी ऑल दिस थिंग्स, और जिन चीज़ों को मैं छू के अनुभव करती हूँ उनको मैं आँखों से देखना चाहती हूँ। इफ़ आई कैन गेट टू मच प्लेजर फ्रॉम मैर टच, हाउ मच मोर ब्यूटी मस्ट बी रिलेव्ड बाय साइट। अरे जिन चीज़ों को मैं छू कर, स्पर्श से पता लगाती हूँ, उन चीज़ों को अगर मैं दृश्यों के रूप में आँखों से देखूंगी तो मुझे कितनी सुंदरता नजर आएगी। एंड आई हैव इमेजिन्ड व्हाट आई शुड मोस्ट लाइक टू सी इफ़ आई वर गिवन द यूज ऑफ माई आईज से जस्ट 3 days। वो ये मांग कर रही है ईश्वर से कि मुझे 3 दिन के लिए आंखें दे दे, सिर्फ 3 दिन के लिए। हमारे पास तो पूरी 5 सेंस आर्गन्स है, वी हैव द 5 सेंस आर्गन्स। हम हमारे बच्चों को और हम खुद उन सेंस आर्गन्स का उपयोग कैसे करते हैं, जब हम ही नहीं कर रहे तो हम उनको क्या सिखा पाएंगे। तो आप भी सीखिए और बच्चों को भी सिखाइए और उनको नेचर के करीब ले जाइए। ग्रोथ ऑफ किड्स, the house of real education, Manas the house of real education. How can we through the schooling, how can we bring your kids, your children and closer contact with nature? हम कैसे लाते हैं वो हमने बता दिया। देखिए ये बच्चे ऐसा ही नहीं है, ये एनालिटिकल स्टडी अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन आवर स्कूल कैंपस, ये बच्चों ने एक प्रोजेक्ट किया था, साइंटिफिक प्रोजेक्ट था, और उसमें ये निकाला कि हमारे यहाँ फ्लोरा मतलब वेजिटेशन कितना है, मेडिसिनल, ये पूरा उसका परसेंटेज है, मेडिसिनल प्लांट्स कितने हैं, फ्लावरी प्लांट्स कितने हैं, हर्ब्स कितनी है, सब्स कितनी है स्कूल कैंपस में, ग्रास कितना है, क्लाइंबर्स कितने हैं, एक्वेटिक प्लांट्स कितने हैं, और ये है फोना मीन्स एनिमल, एव्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, ये कितना है, फोना कितना है। देखिए फोना, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, एव्स, पीसेस, ममल्स, ये सब चीज़ें उन्होंने अपने प्रोजेक्ट से रिसर्च किया था, एक प्रोजेक्ट किया था जिसमें उन्होंने सर्वे किया था, ऑब्जर्वेशन था उनका, और उन्होंने ये चीज़ निकाली है। तो ये यहाँ तक जाते हैं। बायोडाइवर्सिटी कितनी है, देखो फ्लोरा है 97% और फोना है 107%। मतलब 107 जो है वो फोना है हमारे यहाँ। फोना मतलब एनिमल्स, मतलब ये लिविंग बींग्स इन फॉर्म ऑफ द एनिमल्स, एनिमल किंगडम में से है, और फ्लोरा जो है प्लांट किंगडम में से है। और ये दूसरा प्रोजेक्ट अबाउट द खरमोर इज बोन और द मिसफॉर्चून फॉर द फ्रेम। सो दैट इज द वे, दिस इज वेरी एसेंशियल टू bring our kids in closer contact with nature for their overall development. Thank you very much all of you, and thank you very much to Gati.